आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल चोपड़ा अंकल से और उनकी फैमिली से कि वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरु जी का, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। So Sangat ji, I'll be speaking mixed Hindi and English. So any fault on my part of mine may please be forgiven. So I can say we are of the selected few in this world who has been accepted by Guruji in his Sharan. And दूसरा धन्यवाद मैं करूंगा बड़े मंदिर का, जिसने हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों को मौका दिया कि हम गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सके। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। So I just want to tell you, when we met Guruji in 1997 at Chandigarh. Since I belong to Chandigarh, at that moment Guruji was in sector 33 and it was auspicious day of Shivratri, and we were told there is one satsang going on in sector 33, so you please come. There was one family from Delhi, they invited us to come with them just to have darshan of Guruji. So we went to sector 33. At that moment Shabads were going on, and I think Dolly auntie, she was reciting the Shabads. So at the very first instance my wife was mesmerized, because she is a, you can say, Bhakt of Shivji, and I don't know how she got I have got the Guru, this God in the form of Guru. But since I was not that much, you can say, I don't follow these things. So I said, okay, Guruji ke paas aaye hain. But I was rather little bit surprised. Guruji was at that moment in brighter red chola, and it was shining like anything. So I was a little bit surprised. Chalo theek hai, aaye hain to theek hai. Okay, fine. Then after that satsang, after that Shivratri function, next day again my wife said that okay, let us go to Guruji. So okay, I said okay, chalte hain Guruji ke paas. At that time Gurbani was going on. ठीक है, गुरुजी के पास बैठे, लंगर किया, वापस आ गए. And slowly this thing continued, and you can say, but I was not very much impressed with, ठीक है हम आते हैं गुरुजी के पास, ठीक है शब्द लगते हैं, instead of sitting at home, चलो यहाँ पे आके गुरबानी सुनते हैं. Then people used to do satsang कि गुरुजी ने ऐसे हमारा कल्याण किया, गुरुजी ने हम पे ये कृपा करी. So we used to listen with much of anxiety कि अच्छा ऐसे गुरुजी ने ऐसे कर दिया, ये तो बहुत you can say सब कुछ कर सकते हैं. So in those days, okay fine. Then slowly we started, it was a daily affair that we used to come to Guruji. And okay, but my wife was knowing from a core of her heart that my husband is not very much interested in coming. And one fine day she prayed to Guruji in his heart that Guruji, यहाँ तो मेरे husband का प्यार डाल दो या मेरा मोह छुड़ा दो. And now you see the result in front of you. So okay, हम गुरुजी के पास आते, धीरे धीरे अब संगत में इतना प्यार था कि we used to talk amongst each other कि हमने कहीं इतना प्यार नहीं देखा संगत में, कहीं भी ऐसा नहीं, अपनापन नहीं देखा संगत में. So okay, तो ऐसे हुआ कि एक दिन my mother, she was a heart patient, and suddenly it became very severe. So okay, we got with some approach and all that, we got an appointment in PGI, and the doctor who examined her, he said that okay, you have to get TMT done. Okay, fine. When the TMT was being done, treadmill test, it was stopped in between by the doctor. He said that okay, you rush to emergency. So we said, what happened? So my dad asked me, what is the thing? I told my father that they are not supposed to reveal anything, but okay, we have to follow. But he said that okay, but he requested the doctor who was conducting the TMT that okay, can we come on coming Tuesday, because already we have got an appointment. So he said that okay, you can take her back home, but on your own risk. But any uncomfortable position, at any uncomfortable instance, or if she feels uncomfortable, you have to rush to the hospital.
we should I okay. So in those days we used to come to Guruji. I told my dad said that आप तो गुरुजी के जाते हो तो वहां पे कैसे करेंगे, कैसे आपको इन्फॉर्म करेंगे. ओके, आई सेड ओके, आई गेट ए पेजर एंड आई टोल्ड हिम हाउ वी कैन ऑपरेट एंड हाउ यू कैन कांटेक्ट मी. सो आप गुरुजी के पास तो हमने जाना ही है. एट दैट टाइम इतना गुरुजी के हम रंग में रंगे गया था. एटलीस्ट आई कैन टॉक ऑफ माई सेल्फ कि इतना रंग में रंगा गया था कि आई डोंट वांटेड टू मिस ए सिंगल डे विदाउट गुरुजी. सो ही सेड ओके. व्हेन ऑन दिस ट्यूसडे the doctor examined, he saw her report and all that. He said that her 2 arteries are completely blocked. I can't say about other 2, but her 2 arteries are completely blocked and that will be known only after angiography. So better you take a date for angiography and you proceed further. So then we discussed at our place, we contacted our family doctor. They said that okay, better you get the angio done at Escorts in Delhi. Because if any further treatment is required, then it is better if you get it done at Escorts. We said okay. So my younger brother who used to be in Delhi, he took the date and all that. And my parents went to Delhi. In the meantime, I told my wife, my auntie, that देखो गुरुजी की महिमा का सारे गुणगान करते हैं. कुछ कहते हैं हमारी किडनीज ठीक कर दी, किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दी, किसी का एस्थमा कर दिया. और हमने खुद देखा है कि एक अंकल थे, ही वाज हैविंग डायबिटीज. तो गुरुजी कहते हैं आला जलेबी खा ले, सवेरे जाके चेक करा ली. सो टू अवर सरप्राइज नेक्स्ट डे ही सेड दैट गुरुजी मेरी तो शुगर नॉर्मल थी, तो क्यों ना हम मम्मी की प्रॉब्लम गुरुजी से डिस्कस करें. आई डोंट हैव द करेज टू टॉक टू गुरुजी, फ्रैंकली स्पीकिंग. बेटर यू गो एंड टॉक टू गुरुजी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है. शी आफ्टर लॉट ऑफ परसुएशन शी एग्रीड. एंड नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू गुरुजी, इसने माथा टेका एंड शी टोल्ड गुरुजी, गुरुजी ऐसे ऐसे ना मम्मी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कराने के लिए बोला है. एंड गुरुजी सेड ना की है. गुरुजी यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, मतलब पंजाबी में काली बोल देती बड़ी. ही यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, सो ही सेड ना की है. शी कुडंट गेट व्हाट गुरुजी हैज सेड. सो शी सेड हैं जी. गुरुजी कहते ना की है. शी टोल्ड द नेम. गुरुजी लुक फॉर अ while and said बात च गल करांगे. She came back with tears in her eyes and one auntie, Brigadier Saini's wife, Saini auntie, she came running. क्या हुआ गुरुजी ने क्या कह दिया. She said देखो गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं. अब मैंने मम्मी की बात करी गुरुजी से, तो गुरुजी कहते हैं बात च गल करांगे. चलो गुरुजी की जैसी मौज, जैसी गुरुजी की इच्छा, ठीक है जैसे. She said okay, no problem, what's the big deal in it? Why you take आज्ञा at the end of संगत? जब गुरुजी आपको आज्ञा देंगे, you again discuss with him. इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया, it's okay. So she said okay fine. In the meantime I want to tell संगत जी कि गुरुजी ने सेवा भी दे दी. So we were on cloud 9 कि अच्छा गुरुजी ने तो सेवा दे दी हमें. My wife was on cloud 9 कि मुझे तो बर्तनों की सेवा दे दी. तो she was very happy. तो जब जाने के वक्त इट वॉज मे बी अराउंड 12:30 को, गुरुजी इतने बजे ही चंडीगढ़ में आज्ञा देते थे, तो 12 और 12:30. सो शी व्हेन गुरुजी के पास माय आंटी वेंट, सो जैसे ही माथा टेका शी सेड गुरुजी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਗੁरुजी सेड ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਲਿਆਣ. he said okay. We came back. And after a couple of days, when the angiography was being done, my younger brother was with my mother. So the doctor who was doing the angiography, he said, young man, who is she to you? He said, she is my mom. He said, congrats, everything is perfectly all right. These were the exact words what the doctor said to my younger brother. He came down running, told my father, and it was around 8 at that moment, or 7:30 or 8, and we were just preparing ourselves to go to Guruji. तो गुरुजी इतने बजे ही दर्शन देते थे, 8 साढ़े 8 के बीच में. So he told that ऐसे ऐसे, तो डॉक्टर ने तो ऐसे बोला. बस गुरुजी ने तो कृपा कर दी. And when we went to Guruji, जैसे मेरी आंटी ने माथा टेका, she said, गुरुजी मम्मी की रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक है. गुरुजी कहते, गुरुजी तो खैर जान नहीं जानते. गुरुजी ने कहा अच्छा आ गई रिपोर्ट, तेरी सस लगती है, तेरी मां लगती है. He used to speak ठेठ पंजाबी, I can say. He simply said, अच्छा तेरी सस लगती है, तेरी मां लगती है. She said, गुरुजी सस लगती है. गुरुजी कहते अच्छा तू संतों तो सस का कल्याण कराया.
नूंह तो जैलसी कर दिया सत्सा नाल। एंड उसके बाद गुरु जी ने मेरी आंटी का नाम ही रख दिया नूंह सस, बैठी है नूंह सस। और किसी ने आना, द संगत यूज्ड टू कम मतलब आफ्टर ए गैप ऑफ सम डेज, ए देखो ए कुड़ी एक संता तो सस्ता कल्याण करा के गई। एंड संगत जी, आई टेल यू, I am talking of 1997. It maybe I don't remember the month, but from 97 to till date, we haven't visited a cardiologist. No doubt, at this age, at the old age, there are multiple problems, but we haven't visited it. My mom didn't have any heart problem from that day onwards. So this is the kripa of Guruji. So Guruji की तो धीरे धीरे अब जैसे हम आते रहे तो गुरुजी के पास, गुरुजी से वैसे ही मतलब यू कैन से हम ये नहीं कह सकते कि क्लोज आए, पर गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया एंड वी फेल्ट आवरसेल्व्स कि हाँ जी गुरुजी ने तो अपनी शरण में ले लिया। और संगत जी कभी ऐसा मौका मिल जाता था गुरुजी के पांव दबाने का, या ऐसा हम लकी अपने आप को फील करते हैं कि कभी टांगे दबाने का मौका मिल जाता था। यू वॉन्ट बिलीव कि हमारे हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। वी यूज्ड टू हैव फ्रेग्रेंस नॉट फॉर आवर्स, फॉर इवन डेज। फ्रेग्रेंस आती थी हमारे हाथों से। कभी ऐसा मौका मिल जाना गुरुजी के पांव या टांगे दबाने का। एंड माई किड्स, दे वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम एंड स्लोली दे ग्रू अप। सो व्हेन माई एल्डर सन, ही वाज इन +2, सो वी आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी फर्दर क्या कराएं। गुरुजी जस्ट सेड लॉ। ही सेड ओके, गुरुजी ने कह दिया बस ठीक है। सो उसके बाद गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ दिया। सो व्हेन माय यंगर सन, ही वाज इन +2, तो माय आंटी सेड कि हमने बड़े बेटे के वक्त तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो हमने पूछ लिया तो अब कैसे करें। तो ओके ठीक है, वी वर इन डायलेमा की कैसे करें, क्या करें। तो सडनली वन फाइन मॉर्निंग शी सेड कि मुझे तो ड्रीम आया। गुरुजी ने कहा और फिर छोटा बन गया इंजीनियर। So the things were clear. Fine. He went to engineering side. So while he was doing engineering in Chandigarh, so there was one satsang. So another Sangat, one young girl from Sangat, she came to my auntie. She said that दीदी गुरुजी ने ना मुझे रात को ना ड्रीम आया, तो आपका बेटा मुझे कहता गुरुजी ने तो मेरी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दी। So things lines were drawn. He said that okay, wheresoever I am selected, I won't take up that job. I won't sit in the final interview. Guruji ने ऐसे बोला I will take some university in US. So he got admission in good university in the University of California, USC. Sorry, University of Southern California. Okay, fine. During his studies, one day he was playing football and he got hurt himself. Another player, he had a full-blooded kick on his knee. So at that moment we were in some marriage. हुआ ऐसे था कि हम किसी सत्संग में गए थे and from there we planned that we will go to marriage. So we had chai prasad and after 1 hour we left and went to the marriage. So it was afternoon, Sikh marriage wedding. So 3 or 3:30 we got a call from him and we were surprised कि अभी इस वक्त तो रात है, कैसे कॉल आई। So my wife started telling him marriage में ऐसे था, पिछली बार ये आया था, सिंगर वो आया था। He said that आप अपनी बात कर रहे हो, मेरे चोट लगी है, I am in pain, तो बहुत ज्यादा पेन हो रही, मैं कौन सी पेन किलर लूं। So we were surprised. So then we said कि okay बेटे you do one thing, you call Dr. MP Singh. उसका वो भी संगत के हैं, Dr. MP Singh, he is an orthopedic surgeon. तो आप उनसे बात करो। He called Dr. MP Singh and he said okay you send me the photograph of your injury. So when he sent the photograph and he viewed that, he said okay you immediately rush to emergency. Emergency में चला गया and while coming back, that marriage was at Sarhand, and while coming back to Chandigarh, मेरी जो फायरिंग हुई मुझे याद है भी क्या हो गया। हम सत्संग छोड़ के आ गए, देखो बच्चे के चोट लग गई, को शादी रुक जानी थी, हम और 2 घंटे लेट चले जाते। चलो ठीक है ओके। हम उसके बाद शाम को एक जगह और सत्संग था, वी वेंट देयर एंड फ्रॉम हर फेस another one to auntie, she gauged that something is wrong and she has to reveal कि ऐसे ऐसे उसके चोट लगी है। ओके ठीक है। अब रात को हम आए, हमने कहा पता नहीं क्या है, मैसेज करें फोन ना उठाए।
देन ही गेटिंग, कहते जी मेरे तो वो हुआ है, MRI हुई है एंड माय नी इज फ्रैक्चर्ड, सो अब डॉक्टर ने इमोबिलाइजर लगा के मुझे भेज दिया। ओके, अब हम सोचेंगे ही इज इन LA, USA में है, तो कैसे करें, उसके चोट लगी है, ठीक है उसके अपार्टमेंट मेट्स तो हैं 2 और, तो व्हाट वी शुड डू, बट ही सेड ओके अब क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे ही गॉट, उसने यूनिवर्सिटी का डॉक्टर के पास जाना था बिकॉज ही वाज हैविंग इंश्योरेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट देखी, ही रेफर्ड हिम टू ऑर्थोपेडिक सर्जन हु गेव अपॉइंटमेंट आफ्टर 1 वीक। इन द मीन टाइम another uncle, he was doing satsang next day and he said that okay, let us pray, एक संगत का बच्चा है, let us, he is in great pain there, let us pray, let the संगत pray। तो ओके, उन्होंने सत्संग किया। नेक्स्ट डे व्हेन ही कॉल्ड अस, ही सेड कि पता नहीं क्या बात हुई, पेन ही नहीं हुई। हमने कहा ये बेटे संगत ने प्रे करी है, संगत भी गुरुजी को उतनी ही प्यारी है, तो ये संगत की प्रे का ही फल है कि देख ले तुझे पेन नहीं हुई। कहता ओके फाइन, कहता किसी को आने की जरूरत नहीं, आई विल मैनेज हियर। कहता ओके, गुरुजी ने तुझे भेजा बेटे, वही तेरे ख्याल रखेंगे। एंड आफ्टर 1 वीक आई स्टिल हैव गॉट द रिपोर्ट्स, जिसमें क्लियर आया हुआ उसके फ्रैक्चर है। एंड आफ्टर 1 वीक व्हेन ही वेंट टू ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ही सेड कि ही केप्ट, ही हैड ए डिजिटल एक्सरे, उसने अपना डिजिटल एक्सरे किया कि तो पूरे 12-15 मिनट तक उस एक्सरे को देखता रहा कि मुझे इंजरी दिखाई नहीं दे रही है। एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग सिटिंग ऑन नेक्स्ट टू हिम कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हाउ आई कैन एक्सप्लेन टू दिस गोरा कि गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग करी है, हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस डॉक्टर की कैसे हुआ है, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज द रियलिटी। When we again the report was sent to us, तो यहाँ पे हमने 2-3 डॉक्टर्स को कहते हैं देखो जी ऐसे था, इसमें तो इंजरी है, इसमें ठीक है, पर जैसे वो कह रहे हैं वहां के डॉक्टर, यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। हम पेशेंट को बिना देखे कुछ नहीं कमेंट कर सकते। वी वर अवेयर कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, अब वी कांट एक्सप्लेन टू अदर्स कि हाउ गुरुजी ने ब्लेसिंग करी है। तो यू कैन से कि गुरुजी ऐसे हर एक छोटे छोटे स्टेप पे, पग पग पे अपनी कृपा हमारे साथ रहते हैं। एंड ये नहीं है कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो अब वो नहीं है, हम उनकी कृपा नहीं है, बराबर उनकी कृपा हैज, यू कैन से, टर्न टू बी मेनी टाइम्स देन प्रीवियसली। गुरुजी तो छोटी से छोटी आंच भी नहीं आने देते। एंड यू सी कि सम पीपल फील कि वी हैवंट हैड ए दर्शन ऑफ गुरुजी, तो हम काश हम दर्शन, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी को तो जो संगत बाद में जुड़ी है उनका इतना फेथ है गुरुजी पे कि हम खुद भी फील एनवी ऑफ द न्यू संगत। आई डोंट से कि न्यू संगत, जो संगत बाद में जुड़ी है गुरुजी के चोला छोड़ने के, शरीर छोड़ने के बाद जुड़ी है, इतना फेथ है उनको गुरुजी में कि हमारा भी इतना फेथ नहीं है कि वी हैव सीन मेट गुरुजी एज ए पर्सन। तो वो संगत ने तो शुरू से ही भगवान माना है गुरुजी को। आई कैन से कि पता होता था कि गुरुजी तो भगवान है, पर जैसे गुरुजी ने आंखों पे पट्टी बांधी होती थी ना हमारे, कि हम वो जज नहीं कर पाते थे। जैसे माइंड में ना ऐसे होता है कि हाँ जी गुरुजी के पास मिले। आज की डेट में अगर हम कहें तो गुरुजी से, तो यू कैन से कि वी विल नेवर लीव गुरुजी, हम उठेंगे ही नहीं गुरुजी के पास कि हम तो भगवान के पास बैठे हैं। आई जस्ट टेल यू वन इंस्टांस कि ऐसी एक बात चंडीगढ़ में पंचकूला में, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट गुरुजी तो अपने किसी भी संगत पे आंच नहीं आने देते। गुरुजी खुद कहते होते थे कि दुख जो है, जो आपका कष्ट है, उसको मैं बहुत कम कर देता हूं ताकि आपको फील ना हो। तो आई टेल यू वन थिंग कि एक बार ऐसे ही पंचकुला में सत्संग हो रहा था अग्रवाल भवन में। सो इट वाज अराउंड 12, तो संगत, देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड रश एट दैट डे, ऑन दैट डे। तो मुझे 12 बजे काफी भूख लगी, तो मैंने एक आंटी को बोला, आंटी कुछ है खाने को? कहते लंगर फिर बन रहा है, कोई बात नहीं अभी आ जाएगा। मैं कहा आंटी मुझे कुछ दे दो। I had one puri with a halwa, a little bit halwa on it, and I had it. तो तब मुझे वैसे ही ख्याल आया। तो on that day, this milk was, hot milk was being distributed to the sangat outside. While going back, people were taking milk and then going to their places. तो मैंने कहा बाहर जो अंकल खड़े हैं उनको भी तो भूख लगी होगी, जो आंटियां वहां पे सेवा कर रही है, मुझे लगी है तो उनको भी लगी। I went outside. तो अंकल एक थे, वो दूध को हिला रहे थे। तो उनको मैंने बोला, मैं कहा अंकल देखो ऐसा है, मुझे भूख लगी, अब आप जाके प्लीज आप कुछ खा लो, हमने इकट्ठे ही चाय प्रसाद लिया था, तो आप प्लीज जाओ। ही सेड ओके। तो आप ना, कहते अंकल इसको दूध को हिलाते रहना कि ये वो ना हो जाए, नीचे ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। आई सेड ओके। अच्छा, वो अंकल गए, मैंने दूध को हिलाना शुरू कर दिया। आई डोंट नो हाउ मेरा ध्यान कैसे डिस्ट्रैक्ट हुआ, दैट टम्बलर, इट वाज
वो उलट गया और सारा नीचे दूध ही दूध, इट वाज बॉइलिंग हॉट मिल्क जो मेरे ऊपर गिरा और चारों तरफ दूध फैल गया। सो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग ऑन माई हील्स। तो बाहर जो अंकल थे वो कहते हैं अंकल आप बाहर आ जाओ। मैं कहा हाउ आई कैन कम आउट, अगर मैं नीचे पांव रखूंगा वो तो जल जाएंगे, इतना गर्म दूध है। तो इतने में वन ऑफ द संगत ही ब्रॉट ए चेयर एंड केप्ट इट इनसाइड। अंकल आप इस पे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ इस पे। सो आई केप्ट देयर विद माई लेग्स रेज्ड। सो उस पे पानी डाला गया मेरी। तो एक डॉक्टर पुनीत है, चंडीगढ़ की संगत है, ही सेड कि अंकल ऑलरेडी इट इज 12:30 और सो, तो मैं देखता हूँ अगर कोई केमी शॉप तो खुली नहीं होगी, बट आई कैन डू इज कि मैं किसी नर्सिंग होम में जाता हूँ, इफ आई कैन गेट सम ऑइंटमेंट। मैं कहा पुनीत देख लो, ये कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि दुगड़ी में गुरुजी की कृपा से चाय पे सेवा होती है, तो बड़ी बार मेरे पे चाय गिरी है। तो ये जो है ऐसे चाय गिरी है, तो कभी मुझे फील नहीं हुआ, अपने आप ही ठीक हो जाता है। आई हैव नेवर पुट एनी मेडिसिन और एनीथिंग ऑन दैट। तो देखना कुछ नहीं होगा। तो वही हुआ आफ्टर कहते जब वो थोड़ा मुझे ठीक फील हुआ, मैं अंदर आया, लंगर किया, एंड नेक्स्ट डे आई वेंट टू माय ऑफिस विद माय सॉक्स ऑन एंड शूज ऑन एंड नथिंग हैपेंड। तो दिस इज द यू कैन से कृपा ऑफ गुरुजी, कि गुरुजी संगत को कुछ नहीं होने देते। ऐसे ही एक बार दुगड़ी में क्या हुआ कि आई वॉज पुटिंग टी इन द ग्लासेस, तो एक वो हनी भी आ गई। ओके, शायद मैंने कहा बिकॉज ऑफ दिस स्वीट कहते टी आ गए होंगे, और धीरे धीरे 10, 15, 20 इकट्ठी हो गई। तो मैं परेशान, कोई हाथ पे बैठे, कोई कोनी पे बैठे, कोई कुछ, तो मैं परेशान। मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी। मैं कहा चलो अगर कुछ होगा तो अगर इन्होंने मुझे काटा तो आई विल टेल समवन, आई कांट से एनीवन की जी आप मेरी जगह बैठ जाओ। तो इतने पे एक अंकल थे, उन्होंने थोड़ा उसको वेव करना शुरू कर दिया, बट वो हनी बीज तो ऐसी थी कि ओढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। एंड यू कैन सी कि विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी फॉर 2 hours आई डिड दिस एंड आई वाज नॉट बिटन बाय एनी हनी बीज। देखो मेरे हाथ पे बैठ रही है, मेरी कूनी पे बैठ रही है, मेरे इधर उधर बैठ रही है, मुंह के आसपास घूम रही, कुछ नहीं हुआ। तब मुझे एक इंस्टांस याद आया कि ऐसे ही एक टिमाना अंकल हैं, वो गुरुजी के साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने अपना इंस्टांस सुनाया था स्कूल का कि एक बार उन्होंने बी हीव को पत्थर मार दिया और हम सारे भाग गए, तो गुरुजी वहीं खड़े रहे, तो किसी बी हीव ने काटा नहीं गुरुजी को। तो मैंने कहा गुरुजी तो अपनी संगत पे नहीं आँच आने देते, गुरुजी को तो क्या भी है, किसी ने उसने मक्खी ने आना था गुरुजी के पास। तो दिस इज यू कैन से कृपा ऑफ गुरुजी। अब गुरुजी को कभी गुरुजी ने कभी नहीं ऐसे नाम दिया कि ऐसे ये नाम दिया या ऐसे है या फॉलो करो। कभी अपनी मौज में बैठे हैं तो गुरुजी ने कह देना पहली बॉडी का पाठ करया करो, किसी को कह देना शिव पुराण पढ़या करो, लाइक दैट। ऐसे कभी उन्होंने प्रवचन टाइप नहीं किया। बट आई जस्ट रिमेम्बर वन इंस्टांस, इट वाज मिडनाइट और बियॉन्ड मिडनाइट। तो गुरुजी वैसे अपनी मौज में बैठे थे, 10-12 संगत बैठी थी, और गुरुजी ने इतना बस कहा, 2 चीजें मुझे अब तक याद है। गुरुजी ने कहा थानू की पता कितनी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, की बीमारियां आ रही हैं, थानू की पता एड्स नालों खतरनाक बीमारियां आ रही हैं। और गुरुजी ने एक चीज और बोली कि अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखो, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखो। दीज आर द 2 words आई जस्ट रिमेम्बर ऑफ गुरुजी। सो आई कैन वी फील वेरी वेरी लकी कि हम गुरुजी की शरण में हैं। देखो गुरुजी की कोई हमें प्रॉब्लम होती है, जस्ट वी रिमेम्बर गुरुजी एंड वी आर आउट ऑफ इट। सो दिस इज द कृपा ऑफ गुरुजी। नाउ आई रिक्वेस्ट माय आंटी टू टेक ओवर। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी को, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की संगत को भी मेरा नमस्कार, जो इतनी पेशेंस से संगत सुन रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं आपको अपना नाम भी बता दूं, मेरे को रेनू चोपड़ा बोलते हैं, रेनू आंटी भी बोलते हैं कई लोग। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में इस जन्म में शिवरात्रि 97 में लिया। उस दिन 7 मार्च था। तो शाम को हम गए गुरुजी के दरबार में। तो गुरुजी उस वक्त, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि 33 सेक्टर में होते थे चंडीगढ़ में, तो वहाँ टेंट वगैरह लग के, तो उन्होंने एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ डोली बलेरिया आंटी पंजाबी गीत भी गा रही थी, शब्द भी चल रहे थे। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड की कजिन के द्वारा बोला गया कि मत्था टेको, तो मैंने 1 मिनट तो लगाया, पर जब मैंने मत्था टेक के ऊपर देखा तो गुरुजी की कृपा दृष्टि ऐसी पड़ी, वो जो गुरुजी की कृपा दृष्टि पहली नजर, वो बस मेरे दिल में समा गई। गुरुजी ने उसी वक्त मुझे अपनी शरण में ले लिया। तो मुझे बस एहसास हो गया कि आज शिवरात्रि है, कि शिवजी भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए हैं, अपनी शरण में ले लिया है। तो हम वहाँ बैठे रहे कुछ देर।
तो फिर घर आए। उसके बाद बस गुरुजी का ऐसा प्यार पड़ गया कि हर शाम होते ही बस दिल करे कि गुरुजी के चले जाएं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोलना कि चलें गुरुजी के, थोड़ा सा अनमने से ये ले भी जाते थे। फिर एक दिन मैंने बस मन में यही सोचा कि गुरुजी या तो मेरा प्यार छुड़ा दो या मेरे हस्बैंड का प्यार डाल दो। बस उसी दिन की बात, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद बोलना शुरू कर दिया कि आओ गुरुजी के चलें। तो बस हम खुशी खुशी गुरुजी के जाने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। तो गुरुजी 7 मार्च 1997 से लेके 30 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में रहे। वो सारे 238 डेज थे, मैंने काउंट करे। वो इतने गोल्डन डेज हैं। 97 ही हमारी लाइफ का गोल्डन ईयर है कि साक्षात भगवान ने हमें दर्शन दिए और हमें अपने चरणों में बुलाना उन्होंने। हम रोज शाम जाते रहे। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो गुरुजी इतने प्यारे, उन्होंने मेरे जैसी ना चीज से बात करनी। उन्होंने अक्सर ही मेरे से बात, जब मैं तब वहां पे गुरुजी के चरण छू लेते थे हम, कई बार तो 6-7 बार भी दिन में छूने का अक्सर मिल जाता था। तो मैंने जैसे ही चरण छू के ऊपर उठना तो उन्होंने मेरे से कभी नाम पूछ लेना, ना किया तेरा, मैंने बता देना। फिर केड़े सेक्टर आने हैं, मैंने वो भी बता देना। कितना नंबर है, उन्होंने घर का नंबर भी पूछते थे तो मैंने वो भी बता देना। ऐसे रोज ही मेरे से कुछ प्यार से छोटी सी बात कर लेते थे। तो जब घर जाते थे तो मेरे हस्बैंड कहते गुरुजी तेरे नाल तो बड़ियां हंस हंस के गल्लां करदे आ, मैनू तो गल ही नहीं करदे। मैं कहा कोई बात नहीं, अब हम कल जाएंगे तो मैं आपकी भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। तो जब हम अगले दिन गए तो गुरुजी सिंहासन पर नहीं बैठे थे, दीवार के साथ बैठे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड, हम भी वहां बैठ गए जमीन पर। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये मेरे पति देव। तो गुरुजी ने इनकी तरफ देखा और इनके पीठ पे पैट किया और बोला वैस चंगी है तेरी, आया करो। तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि गुरुजी महाराज ने मेरे बारे में ये कहा कि आई एम गुड। तो मेरे हस्बैंड उसके बाद बहुत खुश हुए। ही यूज्ड टू बिलीव दैट आई एम गुड। तो उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने ये सोच लिया कि मैं अच्छी हूँ। तो फिर ऐसे ही एक दिन हुआ कि ये अप्रैल 97 की बात है कि एक संगत में एक धनोआ आंटी आते होते थे। तो उन्होंने एक दिन हमें इनवाइट किया कि कल आप हमारे घर आना, हम 5 सेक्टर में रहते हैं, तो गुरुजी महाराज आ रहे हैं संगत के साथ, आप भी आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम अगले दिन उनके घर चले गए। तो उनके घर में हम जैसे ही गए तो उनका ड्राइंग रूम क्राउडेड था संगत से। तो गुरुजी के चरण स्पर्श करने के बाद मुझे जहाँ स्थान मिला तो गुरुजी की सिंहासन के कोई 10 फीट की दूरी पे बैक साइड पे मिला। तो मैं वहां अनमने से बैठी रही कि गुरुजी, फिर मैंने सोचा गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते थे, तो गुरुजी तो मैं गुरुजी के पीछे बैठी हूँ, गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते। तो इतने में गुरुजी ने ऐसा सोचना मात्र था कि गुरुजी ने अपना हेड 45 डिग्री के एंगल पे टर्न किया। तो फिर उन्होंने उनकी आई से एक ब्लू रे निकली जो कि मेरे को पेनिट्रेट कर गई। तो आई फेल्ट ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की। तो मेरे को ऐसे सोचने की क्या जरूरत है कि वो गुरुजी मेरे को नहीं देख सकते। गुरुजी सब कुछ देख सकते हैं, मन की बात समझ सकते हैं, सब कॉन्शियस माइंड की बात समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर ऐसे एक दिन में ही हम गुरुजी के 7-8 बार चरण स्पर्श कर सकते थे और उनसे जब भी प्रसाद को 7-8 बार अपने हाथ से प्रसाद देते थे। सबसे पहले तो वो हलवे का प्रसाद देते थे, वो अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे और हमें दोनों हाथों में नहीं समाता था। तो हम बाहर खा के आके फिर बैठ जाते थे। फिर कभी वो बोलते थे कि जिन्होंने लड्डू पसंद है आ जाओ, फिर लड्डू वालों की लाइनें लगनी। फिर उन्होंने कहा जिनको बर्फी पसंद है वो आ जाओ, तो फिर लाइनें लगनी। तो फिर रात को कभी चॉकलेट, कभी कुछ। गुरुजी ने इतना प्रसाद खिलाया हमें 97 में, इतना प्रसाद खिलाया। अब हम सोचते हैं कि हम कैसे खा लेते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं प्रसाद लेने गई, उन्होंने ना मेरी राइट आर्म पकड़ ली, जोर से, इतने जोर से पकड़ी, इतने जोर से पकड़ी और मुझे बोला कि तू मेरी कच्ची चेली है कि पक्की। गुरुजी के पास इतनी वाइब्रेशन थी, इतना स्ट्रांग हो रहा था कि उनके सामने हमारी जुबान खुल नहीं पाती थी और आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे, उनकी इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन होती थी। तो मेरे मुंह से तब भी कुछ बात नहीं निकली। वैसे तो मैं बहुत टाके के मुंह पर, गुरुजी के सामने मेरे से कुछ मुंह से बात नहीं निकली, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं बस सिर्फ इतना ही बोल पाई, गुरुजी थानू पता ही है। पर अब मेरा दिल करता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, गुरुजी पक्की पकोड़,
पक्की पकौड़ पक्की पकौड़। गुरुजी शायद तब भी जानते थे, पर मेरे मन में तो ये रह गया कि मैंने गुरुजी को बोला नहीं कि मैं उनकी पक्की चेली हूँ। तो ऐसे ही ना एक मैं अपने बच्चों का इंसिडेंट सुनाती हूँ। आई हैव गॉट 2 सन्स। तो मेरे बच्चे तब छोटे छोटे थे, तो हमारी फैमिली में हेरिडिटी प्रॉब्लम है, कोई की स्पेक्स लग जाती है। मेरे हस्बैंड के भी स्पेक्स लगी है, मॉम इन लॉ के भी है, तो ऐसी मेरे दोनों बच्चों की लग गई। तो मैं बहुत परेशान रहने लग गई, तो कि मेरे की छोटे छोटे बच्चों की ऐनक लग गई है। तो फिर गुरुजी परेशान नहीं देख सकते अपनी संगत को। तो एक दिन मुझे फिर ड्रीम आया कि गुरुजी ने मेरे एल्डर सन को पैरों से पकड़ के घुमाया है। तो उसके बाद हम एक और डॉक्टर के पास गए, तो उस डॉक्टर ने बोला कि ऐनक की जरूरत नहीं है, बच्चों की आंखें बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा 1 साल तक चला, तो मतलब वो वाला आशीर्वाद 1 साल तक था। उसके बाद यानी वो ऐनक लग गई, तब मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर हाँ, तो ऐसे ही जब हम गुरुजी के गए, जैसे हम 4 सिस्टर्स हैं, तो जैसे हम गुरुजी के गए तो हम 2 बहनों की तो शादी हो चुकी थी, पर 3rd सिस्टर की अभी हो नहीं गई थी। तो जैसे ही गुरुजी के जाने लगे तो थोड़े दिनों में ही उसका भी रिश्ता तय हो गया। और वो भी बाद में मुझे पता लगा कि वो भी संगत के लोग हैं, वो अमृतसर में रहते थे और गुरुजी उनके घर में जा भी चुके थे। तो ऐसे ही मैंने फिर एक दिन जब शादी में जाना था, तो मुझे संगत ने किसी ने बोला कि गुरुजी के जब तुम सेवा में हो ऐसे नहीं जा सकते। तो मैंने फिर गुरुजी के पास जाके पूछा, गुरुजी मुझे आज्ञा चाहिए। तो गुरुजी कहते क्यों? मैं कहा गुरुजी मेरे को छुट्टी चाहिए। कहते किन्ने दिना दी? मैं कहा 7-8 दिना दी। इन्ने दिना दी? इन्ने दिन की करना है? तो मैंने कहा गुरुजी मेरी सिस्टर की शादी है। कहते ठीक है। तो फिर मैं जब शादी के बाद से गुरुजी के आई, तो मिठाई प्रसाद मेरे मामा ने दिया था, तो मैं वो लेके गई। तो गुरुजी ने वो संगत में बांटा, और बाद में जो थोड़ा थोड़ा चूरा बुरा रह जाता है गुरुजी ने वो खा लिया। तो मुझे इतनी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद गुरुजी ने खाया। गुरुजी बहुत कम खाते थे, जैसे सब संगत को पता होगा, वो बहुत कम खाते थे। बस एक कारीगराई खा के अपनी प्लेट वो संगत को ही खिला देते थे। पर उस दिन मुझे इतनी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद गुरुजी ने खाया, महाराज ने खाया। तो आई फेल्ट सो मच ब्लेस्ड। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ सिलसिला चलता रहा हमारी जिंदगी, और गुरुजी ने इतनी बेफिक्री में जिंदगी निकाली। बस गुरुजी के होते हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। जैसे कि बेटों की मदर्स को डर होता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, पर नहीं, गुरुजी का निर्मल भाव वो मेरे बच्चों के मन में समाया हुआ है। तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चले, तो कभी भी उन्होंने मतलब ऐसे नहीं किया। सारी संगत उनको इतना प्यार करती है। तो ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, जो ये संगत का प्यार है वो मेरी जिंदगी का सरमाया है। तो एक बार मैं अब आपसे ये इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, जो कि 2012 का है, 2012 का। तो ये 2012 में हम यूएसए गए। तो वहां पे हम एक संगत के घर गए। तो उस संगत ने मतलब हम उन्होंने और भी 5-6 संगत होती थी। अब गुरु जी की इतनी ज्यादा संगत यूएसए में होती नहीं थी। तो उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे शर्म आ रही थी कि हमें रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। पर वो लोग, उन्होंने गुरुजी के कभी दर्शन नहीं किए हुए थे। वो हमसे बार बार यही पूछे जा रहे थे कि गुरुजी कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे, कैसी बातें करते थे। तो मैं उनको, आई वॉज रैकिंग आउट माई ब्रेन, और मैं उनको गुरुजी के बारे में बताई जा रही थी कि ये गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी ऐसे करते थे। और एक बार मैंने उनको ये भी बताई कि गुरुजी संगत को कृष्ण जी के, राम जी के, गुरु नानक देव के, शिव जी के दर्शन कराते थे। तो जो मैं उस वक्त बोल रही थी वो गुरुजी सुन रहे थे, पर गुरुजी को शायद ये बात पसंद नहीं आई होगी कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि लोगों को दर्शन कराते थे। गुरुजी इतने समर्थ, अंतर्यामी प्रभु इतने समर्थ हैं, वो मेरे को भी दर्शन करा सकते थे। तो संगत जी, जब मैं इंडिया में आई तो उस दिन था 20 जनवरी थी। तो 1:45 बजे हम चंडीगढ़ में आए, तो मैं सो गई। तो करीब मिडनाइट 4 AM से लेके 6:30 AM तक उन्होंने मुझे इतना लंबा ड्रीम दिखाया। उन्होंने मुझे उस ड्रीम में कृष्ण जी के दर्शन कराए। तो एकदम ब्लू और सिल्वर लाइट थी। कृष्ण जी थे, बांसुरी बजा रहे थे, और उनके 4-5 सखा थे उनके साथ। तो ठीक है, मैंने इतना ज्यादा ब्लिस फील की, मतलब डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब कि कितनी ब्लिस फील की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिका वाली आंटी जिसको मैंने ये बताया था कि ऐसे संगत को दर्शन कराते थे, उनका भी फोन आया।
तो वो मैं उनको बाद में बात करती हूँ। कहते नहीं रेणु आंटी मैंने जरूर ही बात करनी है। मैंने कहा बोलो क्या बात करनी। तो कहते कि मैंने ये बताना है कि मुझको गुरुजी ने कृष्ण जी के दर्शन कराए। तो ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि अमेरिका में हजारों मील दूर बैठी आंटी को और इधर चंडीगढ़ में इंडिया में गुरुजी ने दोनों आंटियों को कृष्ण जी के दर्शन कराए। ये गुरुजी का प्यार है, गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि गुरुजी सुन रहे थे, उन्होंने, वो सब समर्थ प्रभु है, उन्होंने दोनों आंटियों को कृष्ण जी के दर्शन कराए। तो ठीक है, जय गुरुजी। तो अब मैं अपने बेटे अरस्तु चोपड़ा को बोलती हूँ कि वो गुरुजी के बारे में कुछ बताए। गुरुजी मुझे माफ करना अगर आपकी मैंने रिस्पेक्ट में कुछ इतना अच्छा ना बोला हो, तो ये मेरी पहली बार है, इसलिए संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। मेरा नाम अरस्तु चोपड़ा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी और गुरुजी के संगत को कोटि कोटि प्रणाम। आज अगर मैं कोई भी श्वास ले रहा हूँ अपने, तो वो सिर्फ गुरुजी की बदौलत ही ले रहा हूँ। गुरुजी के बिना का टाइम तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा या क्या होगा। सिर्फ गुरुजी के आगे सिर्फ एक ही अरदास है कि गुरुजी अपने चरणों में हमेशा मुझे स्थान देना, हमेशा बनाए रखना। तो 97 में जब हम गुरुजी के जाते थे तो मैं भी काफी छोटा था और मेरा ब्रदर तो मेरे से भी काफी छोटा था। तो ये था कि मेरे को रात को बहुत ज्यादा डर लगता होता था, इतना ज्यादा डर लगता होता था कि मैं एकदम से रोने लग जाता होता था। और मेरे घर वाले मेरे को घर में अकेला कभी नहीं छोड़ के जाते थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे को बहुत डर लगता है। तो मम्मी कहते गुरुजी नू जाके दसी, उन्हां नाल गल करी, ओही देखणगे हुण, साडे तां हथ खड़े ने। तो मैं गया, गुरुजी के पास गया। एक तो गुरुजी से फ्रेग्रेंस और गुरुजी से वाइब्रेशन ही इतनी ज्यादा आती थी कि आप पास जा भी नहीं सकते थे, और देखना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कांपते कांपते गया और मैंने बहुत ही लाइक इन अ वेरी फास्ट वॉइस आई टोल्ड ही, मैंने कहा गुरुजी मेरे को रात को बहुत डर लगता है, मैं आपका नाम भी जपता हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मेरे को फिर भी बहुत डर लगता है। तो गुरुजी आस्क्ड मी, कहते तू किन्ना दा मुंडा है? मैं इतना मूर्ख या स्टूपिड कह लो तो मैंने कहा गुरुजी चोपड़ा दा। तो जे मैं कह देंदा कि गुरुजी तुहाडा मुंडा हैगा तो गल ही कोई होर हुंदी। तो गुरुजी ने मेरे को कहा तू कम कर, चांदी दा कड़ा बना ले। अगले दिन मैं और मेरे भाई दोनों ने चांदी का कड़ा गुरुजी के पास लेके गए और लंगर प्रसाद, गुरुजी यूजुअली चांदी का कड़ा लंगर प्रसाद के लिए जब संगत को आज्ञा दे देते थे तो तभी डालते होते थे। तो गुरुजी ने मेरे को और मेरे भाई को चांदी का कड़ा डाल दिया ब्लेस करके। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद मेरे को कोई भी डर नहीं लगा, और ज्यादा मैं डराता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरुजी का कड़ा छोटा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती है कड़ा छोटा हो गया। वो तो बिल्कुल बचपन का टाइम था। तो डुगरी की बात है, तो हम एंटीसिपेट, गुरुजी वहां पे अपने फ्रेंड की डॉटर की शादी में आए हुए थे और हम यहाँ से चंडीगढ़ से, वी वर ऑल्सो इन्वाइटेड, तो हम गुरुजी का कड़ा बना के हम ले गए। तो वहां पे गए तो मैंने गया गुरुजी के पास, जब वहां पे डांस की परफॉर्मेंस चल रही, मैंने कहा गुरुजी ये आपने चांदी का कड़ा आपने चंडीगढ़ में डाला था तो ये अब छोटा हो गया है। तो गुरुजी कहते कोई नहीं नवा पा देंगे। तो मैं कहा गुरुजी मैं लेके आए हैं नाल। एंड गुरुजी स्टार्टेड स्माइलिंग, स्टार्टेड लाफिंग। एक संगत की आंटी बैठे थे, कहते बच्चे देखो किन्ने तेज हो गए ने। तो गुरुजी ने की किया, गुरुजी ने वो कड़ा मेरे ते मेरे ब्रदर दोनों दे पाता। एंड फिर मैंने कहा गुरुजी जो पुराना कड़ा है इसको क्या करूं? तो गुरुजी सेड इन्हें जल प्रवाह कर दो। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो वो गुरुजी का कड़ा मैंने अब भी डाला हुआ है, जो गुरुजी ने मेरे को, आई थिंक दैट वाज 2003 और 4 जब गुरुजी ने कड़ा डाला था, तो वो अब भी मैंने डाला हुआ है। एंड व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल तो मैं वो कड़ा गुरुजी का पकड़ लेता हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। तो संगत जी 97 में जैसे मेरी मदर ने बताया कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ, कि जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे हमने जाना वहां पे, और हम रेगुलरली जाते थे, पेरेंट्स तो रोज जाते, और गुरुजी की दया से मेरे पेरेंट्स दोनों की वहां पे सेवा लग गई। मेरी मदर की सेवा थी बर्तन मांजने में, और मेरे फादर की सेवा थी वहां पे लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने में। और हम बच्चे, मन तो मेरा भी करता था, तो मेरी बाद में सेवा उन्होंने लगा दी। संगत थोड़ी ही होती थी, सेवा लगा दी कि आपने नैपकिन प्रसाद बांटने हैं। तो वो गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो सेवा अभी भी की मेहर से हमारी अभी भी लगे, हम डुगरी में सेवा करते हैं, ये सब गुरुजी की कृपा ही है। और कई बारी वहां पे ऐसे होते, बिकॉज देवर नो सेलफोन्स ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मेरी मदर किचन में सेवा कर रहे होते थे, तो कई बारी गुरुजी का झूठा प्रसाद आ जाता होता था, तो पता नहीं कहां से मैं और मेरा ब्रदर आ जाते होते थे। तो और वो कई बारी हमने वो गुरुजी का वो झूठा प्रसाद, कई बारी वो सूप होता था, गुरुजी बेल का शरबत भी पीते होते थे, एक आंटी पटियाले से लेके आते होते थे, तो कई बारी हमें वो भी झूठा पीने का मौका मिल जाता होता था।
और करीब आई वुड से कि मैं छोटा बच्चा था, पर करीब 10-12 सेकंड तो मैंने भी गुरुजी के एक बारी मैंने पैर दबाए एंड गुरुजी ने फिर एकदम से हाथ से इशारा करके मेरे को भगा दिया, क्योंकि बिकॉज इट वुड हैव लुक्ड सो वियर्ड कि एक छोटा बच्चा गुरुजी के पैर दबा रहा है। तो संगत जी हुआ ये कि गुरुजी 97 जैसे मेरी मदर ने बताया 30 अक्टूबर के बाद गुरुजी चले गए एंड मैं और मी एंड माय यंगर ब्रदर वी वर लाइक सो टेंस्ड बिकॉज वी यूज्ड टू लव गोइंग टू गुरुजी एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क आवर मदर की गुरुजी की मम्मा गुरुजी कब आएंगे कब आएंगे। तो मैं मम्मा कहते होते बेटे गुरुजी आएंगे तुम चिंता मत करो। तो एक बारी ऐसे ही होता है, नवंबर मंथ का टाइम होता है, गुरुजी नोबडी न्यू कि गुरुजी कहाँ पे हैं, गुरुजी घर में ही थे पर उन्होंने आज्ञा दे दी कि किसी ने मत्था टेकने नहीं आना। तो लाइक वी वर गोइंग टू स्कूल एंड गुरुजी का जो मेरा स्कूल, माय स्कूल वाज इन सेक्टर 32 चंडीगढ़ सेंट एम्स कॉन्वेंट स्कूल। सो गुरुजी का घर कहीं से भी रास्ते में नहीं आता था, एक सीधी सड़क जाती थी जिसपे वी यूज्ड टू गो। सो वी वर गोइंग इन आवर ऑटो एंड उस दिन पता नहीं कि क्या हुआ कि मेरा ऑटो वाला बिल्कुल गुरुजी के घर के आगे से ले गया और वहां हमने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। गुरुजी वाज इन ब्लैक चोला एंड ही वाज स्टैंडिंग इन हिज बालकनी and me and my younger brother both of us shrieked so loudly on seeing गुरु। मैं कहा मम्मी गुरु, मैंने कहा भाई गुरुजी, वो कहता हाँ भैया गुरुजी। एंड मेरे को इस करके याद है कि उस दिन ट्यूसडे था और मेरा मैथ्स का यूनिट टेस्ट था और मेरे फुल मार्क्स आए थे मैथ्स के। मेरा मैथ्स में थोड़ा कमजोर था, मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स थे। सो इट वाज ऑल ड्यू टू गुरुजीज ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, सारा कुछ हमेशा ख्याल रखते हैं, ये बहुत देखने की बात है। और गुरुजी बच्चों से बहुत प्यार करते होते थे, बच्चों ने शरारतें करनी, गुरुजी ने कभी नहीं गुस्सा होना, कभी नहीं कुछ कहना। नाउ तो बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड संगत इतनी ज्यादा हो गई है कि इस बारी तो लाइक हमें डिसिप्लिन रखना पड़ता, पर उस टाइम संगत कम होती थी, बच्चे शरारतें भी करते थे। एक बारी ऐसे ही हुआ कि मेरे को वो स्कूल से नोट मिल गया और मेरे फादर ने मेरे बहुत मतलब कि बुरी तरह पिटाई हुई, तो मेरा रो रो के बुरा हाल। एंड माय ग्रैंडमदर सेड कि आज जब गुरुजी के जा रहे हो ना तो इसको अपने साथ ले जाओ, ये चुप हो जाएगा। तो मैं गया, हम गए गुरुजी के पास गए, मैं और मेरे फादर ही गए उस दिन सिर्फ। तो हमने गुरुजी के पास गए, मत्था टेका, पहले मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे को इशारा कर दिया, बच्चा ही था मैं कि उधर साइड पे जाके वहां जाके बैठ जाओ हाथ से। मेरे फादर ने मत्था टेका और गुरुजी ने मेरे फादर को बाहर जाके बैठ जा। सो फॉर 4 to 5 कंटिन्यूअस डेज मेरे फादर को गुरुजी ने अंदर नहीं बैठने दिया। मेरे फादर मत्था टेकते, गुरुजी कहते हैं बाहर जाके बैठ जाए। आई वाज लाइक सो हैप्पी कि पापा मारेंगे नहीं। तो गुरुजी का ये देता है कि जो गुरुजी का पर्पस ये था कि आप बच्चों को बिल्कुल ठीक है शरारत करते हैं जैसे उनको मनाओ, पर प्लीज उनको मारो मत। पर गुरुजी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बर्थडेज वर सेलिब्रेटेड विद गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मेरे खुद के बर्थडे हमने गुरुजी के पास जाते, वी यूज्ड टू मेक इंश्योर कि चलो कोशिश रहती थी कि हम जैसे भी हो गुरुजी के पास जाएं। एंड 97 में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करा था, खीर प्रसाद था और साथ में पूरा प्रसाद था, मीठा पूरा था एंड द केक वाज बटर एंड द केक वाज ब्लैक फॉरेस्ट। इट वाज माय फेवरेट केक, मेरे को इस करके याद है। तो वो इट वाज सो वंडरफुल कि लाइक सारी संगत मिलके गुरुजी का बर्थडे मना रही है। एंड उसके बाद 98 में गुरुजी सारी संगत को लेके गए उदयपुर में देयर वाज दिस इनॉग्रेशन। चंडीगढ़ से संगत बस में गई एंड वी वर आल्सो देयर एंड फॉर 42 आवर्स वी वर इन अ बस। कोई थकावट कुछ नहीं हुई एंड वापसी पे गुरुजी ने चीनू भैया संगत के उनको बोला कि आप संगत को बड़ा मंदिर दिखा के लाओ जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है भाटी माइंस में। तो हम वापसी के ऊपर हम वहां पे गुरुजी का मंदिर बन रहा था रुके एंड आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम बच्चा तो था, मैं शरारती था, मैं और 2-3 संगत के बच्चे हम सीधे शिवलिंग पे चढ़ गए एंड नीचे जो गुरुजी का शिवलिंग है वहां पे ऊपर चढ़ गए और नीचे किसी ने बताया हमारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को देखो कहाँ पे हैं। तो नीचे जब उतरे तो बहुत डांट तो पड़ी, बट वो हमने क्या करा, वो शिवलिंग के पीसेस अब भी हमारे पास हैं एंड माय पेरेंट्स वर एट पीस कि चलो बच्चे चढ़ते हुए, गुरुजी का हुक्म था कि शिवलिंग के पीसेस मिल गए। एंड देन बर्थडेज का मैंने आपको बताया, कई बारी ऐसे होना, एक बारी मेरा बर्थडे था एंड यहाँ पे जस्टिस अमरवीर सिंह गिल की डॉटर की मैरिज थी हिमाचल भवन चंडीगढ़ में। तो वहां पे एकदम से बुलावा आया कि गुरुजी आए हुए, हम चले गए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बर्थडे है एंड गुरुजी लाइक वो गुरुजी की स्माइल एंड लाफिंगली ही सेड काका ओ ता तेरा बर्थडे हो गया। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया, अगेन ही गेव मी प्रसाद। दैट इट वाज आई वुड से द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ जो मेरा गुरुजी के साथ बीता।
देन फिर ये हुआ कि गुरुजी ने फिर 2007 के अंदर गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया. इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया. गुरुजी को हम मत्था टेकने, जिस दिन गुरुजी का संस्कार था हम वहां पे गए, दिल्ली गए, तो वहां पे मत्था नहीं टेकने दे रहे थे. मतलब कि रश इतना ज्यादा, संगत बहुत ही ज्यादा व्याकुल थी. तो किसी संगत को मेरे फादर ने रिक्वेस्ट करी कि जी आप मेरे को मत्था चाहे टेकना है तो मेरे बेटे को टेकने दो. दैट वाज मी. इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, इसका रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल है. तो उन अंकल ने मेरे को मत्था टेकने दिया. एंड उसके बाद मेरे फादर भी वहां पे लाइन में जुड़ गए. माय फादर वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने गुरुजी को कंधा दिया. एंड जब मेरे फादर गुरुजी को कंधा दे के आए, सो देयर वाज अ लाइन ऑफ अ स्पेक ऑफ ब्लड ऑन हिज शर्ट. कोई चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर पता नहीं वो लाइन कैसे आई और क्या था. गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा. तो बहुत ज्यादा गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा लाइक वी वर कि गुरुजी कहाँ गए इसी देर. पर गुरुजी ने ड्रीम में आके ये इंश्योर कर दिया कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, आपके साथ ही हूँ. नेक्स्ट वीक ही गुरुजी ने ड्रीम में आके था कि तुम्हारे पास ही हूँ और सदैव तुम्हारा ध्यान रखूंगा. तो अब मैं बात करता हूँ कि गुरुजी ने मेरे को लॉ के लिए कहा था. चोला छोड़ने से पहले गुरुजी ने से पूछा कि मैं क्या करूं. नाउ दिस इज द थिंग कि जो गुरुजी बात कहें उसको मानना बहुत जरूरी है. तो गुरुजी से मैंने पहले पूछा कि जब मैंने बिफोर +2 मैंने पूछा 10th क्लास, गुरुजी क्या करूं. गुरुजी कहते हैं आर्ट्स. तो मैंने कहा गुरुजी नॉन मेडिकल. गुरुजी कहते हैं औखी है. चलो मैंने नॉन मेडिकल ले ली. तो उसके बाद क्या हुआ कि नॉन मेडिकल तो मैंने ले ली, तो आई कुड नॉट परफॉर्म सो वेल इन नॉन मेडिकल. तो उसके बाद जब +2 के बाद मैंने एग्जाम्स दिए, तो मैंने लॉ का एग्जाम ऐसे ही दे दिया था. आई हैड ए डिसेंट जीके. तो मेरी जीके अच्छी थी. आई वाज नेशनल चैंपियन इन जीके. जीके मेरी अच्छी थी, तो मैंने एग्जाम ऐसे ही दे दिया. एंड आई गॉट 18th ऑल इंडिया रैंक इन चंडीगढ़. तो मेरे फादर इंजीनियर थे. उन्होंने बोला कि बेटे को तो इंजीनियरिंग ही करवानी, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल रही थी साउथ वगैरह में. तो चलो फिर हम गुरुजी के पास गए. गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या करे. गुरुजी कहते हैं लॉ लॉ लॉ. ओके फाइन. माय फादर वाज नॉट सेटिस्फाइड. उसके बाद इन्होंने फिर गुरुजी से पूछा नेक्स्ट वीक कि गुरुजी बच्चे को क्या कराएं. एंड गुरुजी ने बहुत डांटते हुए बोला कि संता दी गल ना मन के तेनू पता है ना की हुंदा है. सो देन माय फादर वाज एट पीस कि नहीं, अब जो गुरुजी ने बोला है तो हमने वही करना है. तो मैंने लॉ करी विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स एंड आई परफॉर्म्ड वेरी वेल इन लॉ. तो और लॉ का एक बहुत ही मतलब कि बहुत फनी इंसिडेंट मैं आपको ये बताता हूँ कि आई वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर द ऑल 5 years इन लॉ. तो क्या हुआ, जब मेरा सेकंड लास्ट ईयर था, तो मैंने अपना इनकम टैक्स का एग्जाम दिया एंड पेपर तो मेरा अच्छा हुआ. तो बट पता नहीं उस दिन क्या होता है, रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मेरे को कहते हैं कि काका तेरी ना पेपर च ना रीपेयर आएगी पर रीवैल्यूएशन च क्लियर हो जाएगी. तो मैं क्या गुरुजी तुसी तो मेरी बेइज्जती कराती कि ये है वो. कहना नहीं काका मैं तेनू कहता ना कि तेरी रीपेयर आएगी, तेरी रीवैल्यूएशन तो क्लियर हो जाएगी. सो आई एम फाइटिंग विद गुरुजी फॉर 3 to 4 hours इन द ड्रीम कि गुरुजी ये क्या है. गुरुजी कहते नहीं. एंड इन द एंड ही टोल्ड मी कि तेनू पता है ना कि दैट ईयर आई स्टूड फॉर इलेक्शंस ऑफ माय कॉलेज एंड वॉन दैट. एंड गुरुजी टोल्ड मी तेनू पता है तू इलेक्शनां च की कीता सीगा. तो मैंने इलेक्शनों में संगत जी ये करा था, मैंने अपने ऑपोजिट कैंडिडेट्स की बहुत निंदा करी थी. सो दैट वाज दिस थिंग टू मी अ डिक्टेट फ्रॉम गुरुजी कि मैंने निंदा नहीं करनी है. उसका मेरे को फल मिला. ठीक है, मेरा एग्जाम रीवैल्यूएशन में क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया. मैंने रीपेयर का एग्जाम भी नहीं दिया. मैंने गुरुजी को पहले ही कहा था कि गुरुजी ने जब मेरे को लॉ का करना था, गुरुजी लॉ के अंदर बहुत बच्चों की रीपेयर आती है, मैंने रीपेयर का एग्जाम नहीं देना है. और गुरुजी ने वही किया, मैंने एग्जाम नहीं दिया. तो उसके बाद संगत जी लॉ का गुरुजी ने मेरे को जिस तरह मतलब की हेल्प करी, सारा कुछ करा. उसके बाद इट वाज अ यूएस ट्रिप एंड वी वर अप्लाइंग फॉर आवर वीजा. एंड वहां पे लाइक आवर कैब गॉट लेट एंड हमने एम्बेसी के लिए जाना था. तो हम वी वर वरीड कि हमारा इंटरव्यू निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. तो इतने में आई वाज मोस्ट वरीड. तो माय ब्रदर टोल्ड मी कि यार चिंता न कर, गुरुजी बैठे, कुछ नहीं होगा. इतने में कैब आती है जिसमें पहला शब्द ये लगा होता है, चलता है मेरा सतगुरा मैं तो जुबिन अबर ना कोई. दूसरा शब्द चलता है गुरु जैसा ना कोई देव. और तीसरा शब्द लगता है सेवा थोड़ी मांगत बोती. एंड माय ब्रदर टोल्ड मी कि यार तो चिंता न कर, हमारा वीजा लग जाएगा. बिकॉज उस टाइम बहुत रिजेक्शन, वहां पे गए, वी वर लकी, हमारा वीजा लग गया, सारा कुछ हो गया. अब संगत जी बात ये आती है कि द फ्लाइट वाज टू गो थ्रू चाइना एंड मेरी मदर का बचपन से ड्रीम था कि शी वांट्स टू सी चाइना. तो मम्मी कहते बेटे हम चाइना नहीं रुक सकते. तो आई टोल्ड हर इन पंजाबी, मैं कहा मम्मी इन्नी मुश्किल नाल सारा कुछ होया है तो हूं तुसी नवी पसूड़ी ना पाओ. पर संगत जी होता क्या है, आवर फ्लाइट गॉट डिलेड फ्रॉम चंडीगढ़ ड्यू टू फॉग एंड वी गॉट अ one day full free trip in China. एंड संगत जी सबसे बड़ी बात, मेरे ब्रदर के साथ जो संगत बैठी, एक ब्रदर के साथ एक लड़का बैठा था. ही सॉ दैट पिक इन माय ब्रदर्स फोन एंड वो कहता यू आर फ्रॉम गुरुजी संगत. तो भाई कहता हाँ जी. वो दोनों बंदे सारे रास्ते संगत ही करते गए, ये भी गुरुजी का ही हुक्म था. सो थैंक यू टू गुरुजी.
गुरुजी उसके बाद मेरे ब्रदर को गुरुजी ने ही बोला कि यूएसए पढ़ने के लिए, एंड इट वाज लाइक उसकी हर उसके स्टेप में गुरुजी ने उसकी मदद करी है। अब संगत जी मैं जो आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर गुरुजी का जब समाधि दिवस था उस दिन का सत्संग बताता हूँ। मेरी सेवा खत्म होगी एंड मेरा हमेशा इसके पहले आपको एक और संगत बताता हूँ। एक बारी गुरुजी का बर्थडे था बड़े मंदिर में ही, एंड वी गॉट लेट, तो हमें 7:30 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश में ही हो गए। एंड माय फादर सेड कि बेटे आज तो कोई फायदा नहीं है, अब लेट तो हो ही गए हैं, तो गुरुजी तो आ गए होंगे, अब हम कैसे अपना करके मुश्किल से ही दर्शन हो पाएंगे। मैं कहा नहीं पापा कोई बात नहीं, हम गुरुजी के दर्शन कर लेंगे, गुरुजी देखना आज पक्का लेट आएंगे। सो मी एंड माय मदर वर प्रीटी मच ऑप्टिमिस्टिक कि गुरुजी आज लेट आएंगे, एंड माय फादर एंड माय यंगर ब्रदर वर नॉट। तो संगत जी उस दिन क्या होता है कि गुरुजी की महिमा ही है कि उस दिन गुरुजी बिल्कुल ही लेट, उस दिन गुरुजी 9:30 बजे आए। हम वहां पे पहुंचे, लाइन लगी हुई थी, सारा कुछ हुआ था। मुझको नहीं पता मेरी मदर कौन से दरवाजे से गए, हम दोनों रश था, मैं कौन से दरवाजे से गया, हम दोनों आगे जाके गुरुजी के पास इकट्ठे हो गए टाइम पे, और लास्ट में हमने मतलब कि गुरुजी की आरती की जो थाली थी गुरुजी की आरती कर, और उसके बाद ही आरती बंद होगी। तो गुरुजी कैसे छोटी छोटी बातें बिल्कुल रियलाइज करा देते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे में फेथ रखो, अगर मैं बैठा हूं तो मैं बैठा हूं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो वी आर थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने इतनी मेहर बख्शी और अब भी बख्श रहे हैं और सारी संगत पे बख्श रहे हैं। तो मैं अब आपको इसी साल का जो मैं लेटेस्ट सत्संग है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि कोविड कितना फैला है, सारी जगह कितना हाहाकार मची है, कितना इट्स लाइक सो पेनफुल कि सो मेनी पीपल हैव डाइड एंड और गुरुजी कहते होते थे, गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। तो एक बार मेरे पेरेंट्स वहां पे 33 सेक्टर में बैठे थे रात को 2-2:30 बजे, कई बार ऐसे होने के गुरुजी ने आज्ञा जल्दी दे देनी। तो मेरे पेरेंट्स ने एक बार मन में ही अरदास करी कि गुरुजी तुसी संगत नूं तां बहुत लेट 2-2-2:30 बजे छੱਡ दिओ, मैनू तुसी सानू तुसी इन्नी जल्दी आज्ञा दे दो 11, 11:30, 12 बजे। उस दिन गुरुजी ने रात को 2:30 बजे तक बिठा के रखा। और कोई संगत आयरलैंड से आए थे, शी गॉट चॉकलेट्स, व्हाइट चॉकलेट्स, एंड वो गुरुजी ने संगत में बांटी। एंड आई कैन टेल यू, पता नहीं वो चॉकलेट्स ये कहते, इट वाज लाइक प्रसाद गुरुजी के हाथों से दिया हुआ। इट वाज, आई कैन नॉट डिस्क्राइब द वर्ड्स कि वो कितना वो था। तो एक बारी ऐसे ही पेरेंट्स बैठे हुए थे रात को और लाइट चली गई 33 सेक्टर में, और गुरुजी प्रवचन और गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। तो उस टाइम गुरुजी कहते हैं, लाइट गई हुई थी, तो गुरुजी कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं आने वाला टाइम कितना औखा है, किस किस तरह की बीमारियां आ रही हैं। एड्स तक कुछ भी नहीं, इस तो भी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, ते लेडीज नूं वो बीमारियां सब तो ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो सिर्फ वही बंदा बचूगा कि जेड़ी अपनी सोच पॉजिटिव रखेगा ते रब दा नाम लेगा। तो ये गुरुजी का हुक्म है कि हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और सदैव रब का नाम, गुरुजी का नाम लेते रहना है, कि जिससे जो भी आगे ट्रबल्स आ रही हैं उससे हमें कुछ ना हो। तो गुरुजी इस साल की बात है, कोविड इतना ज्यादा आया हुआ था कि कोविड का जब अभी शुरू ही नहीं हुआ था, जनवरी के अंदर चाइना में ही था। सो माय ब्रदर्स फ्लाइट वाज थ्रू चाइना, तो वो हमारी यहाँ से फ्लाइट लेट हो गई। और मेरा भाई का ही लव्स पांडास, तो वो कहता कि मेरा ग्वांगजू में लेओवर मिलेगा, मैं तो पांडास देखने जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू वहां पे मत जाइयो, कोविड का इतना अभी शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। चाइनीज बताने कहता नहीं मैं तो जाऊंगा। मैंने अपने गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता, इनू जहाज तो थल्ले उतरन नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, ए अपना सीधे आगे अमेरिका की फ्लाइट सीधे पड़े। तो वही गुरुजी का हुक्म था। क्या हुआ, आगे भी फ्लाइट वो थी, तो भाई ने कोई इसको लेओवर नहीं मिला वहां पे खास, उसने फ्लाइट पकड़ी और वो चला गया। तो आफ्टर 2 डेज मेरे को ड्रीम आता है जिसमें लाइक गुरुजी शोड मी कि लाइक कोविड ने इतनी ज्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड कितने लोग मरे हुए हैं, कितने लाइक इट इफेक्टेड सो मच। सो आई टोल्ड माय ब्रदर, मैं कहा इट्स गोइंग टू बी एन एपिडेमिक, आई एम टेलिंग यू। दैट वाज अराउंड 23rd और 24th ऑफ जनवरी, एंड उसके बाद आप देखिए संगत जी कितना ज्यादा फैल गया। अब मैं आपको बात बताता हूँ। इन द मंथ ऑफ मे मेरे को ड्रीम आता है कि गुरुजी बैठे हुए हैं एंड वी आर वहां पे हम संगत में बैठे हुए हैं एंड गुरुजी ने सफेदे आम का प्रसाद दिया हुआ है, हम प्रसाद खा रहे हैं। इतने में मेरी मदर को पता नहीं क्या होता है, वो कोई बात करता है, गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी सानू ना सारे दुख ना इक्को बारी ची दे दो, बारी बारी करके ना दो। So on when my mother said this thing, I get angry and I tell her कि मैं कहा मम्मी तुसी गुरुजी नाल की गल मंगदे पए हो, एंड गुरुजी आल्सो इज एंग्री एट हिम एंड ही सेज कि तू पागल है गया संगतां तो तू दुख मंगदी पई है। तो लाइक वो तो चलो था, मम्मी डिड समथिंग, मतलब कि जो भी उन्होंने गलत बात बोली, बट वी वर हैविंग आम इज एंड मैंगो इज कंसीडर्ड एज एन ऑस्पिशियस फ्रूट। तो
वो गुरुजी का ही हुक्म था. So in the month of August, I had a dream that I got COVID and I am being discharged from the hospital, and there are lots and lots of people in the hospital. So somebody asks me कि what like how you were able to get an admission over here. So we tell them कि हमारी चलो गुरुजी की कृपा है, हमें हॉस्पिटल में जगह मिल गई, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी. तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, in the last week of September, first week of October, my entire family got COVID. My grandmother was perfectly fine. उसके अलावा my grandfather, my father and my mother and myself, we all got COVID, and my father and my grandfather were hospitalized. And I got on 10th October, गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ बख्शी, उन्होंने मेरे को नया जीवन बख्शा कि I got 106 fever and I was shivering, and मेरे को इतने बुरी तरह चक्कर आए, मेरे को नींद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊं, and there was nobody near me. My mother has gone to fetch, she was also having fever, she has gone to fetch ice, and I am praying to Guruji. मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ जाओ, but I want to live. And उस टाइम पता नहीं गुरुजी ने मेरे को क्या स्ट्रेंथ दी, मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने मुंह पर पानी डाला एंड माय फीवर सबसाइडेड. एंड ये गुरुजी का ही कृपा थी कि उन्होंने मेरे को न्यू लाइफ दी. मेरे ग्रैंडफादर पे मेहर बख्शी. माय ग्रैंडफादर इज मोर देन 85 years of age. Nobody can expect a person to go to hospital for 14 days from COVID. Multiple ailments हो जाते हैं, but he is back. Yes, he is recovering slowly. बट गुरुजी ने ही उनको लाइफ दी है, एंड गुरुजी ने उनके लाइफ बताई भी हुई है. इन 2012 he has told my brother कि for how long my grandparents are gonna live. तो गुरुजी ने ही बताया हुआ है, गुरुजी की ही कृपा है. मेरी सारी संगत से एक रिक्वेस्ट है, दे शुड टेक प्रिकॉशंस फॉर कोविड, एंड गुरुजी पे विश्वास रखें. गुरुजी आपकी कृपा करने के लिए बैठे. लेट्स प्रे फॉर ऑल दोज हु हैव लेफ्ट अस ड्यू टू कोविड. एंड गुरुजी से एक अरदास है कि जितनी भी संगत है सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब पर गुरुजी कृपा करें, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें. बिकॉज गुरुजी आई वुड से कि दैट आई जस्ट मिस हिम. यस, गुरुजी आस पास हैं, बट बहुत बारी मन करता है कि गुरुजी आई वांट टू हग यू, आई वांट टू टच योर फीट, आई जस्ट वांट टू हग यू एंड जस्ट वांट टू थैंक यू एंड थैंक यू कि आप हमारी जिंदगी में आए. पता नहीं हमारे कौन से पिछले जन्म का कौन सा एक छोटा सा अच्छा कर्म था कि आपने हमें इस काबिल समझा, कि आपने हमें दर्शन दिए, अपने दर पे बुलाया, हमें सेवा करने, हमें सेवा बख्शी, आपने हम पर कृपा करी. उस मालिक का शुक्राना जिसने हमें इस काबिल समझा. गुरुजी शिव हैं, गुरुजी महाशिव हैं. गुरुजी की महिमा. सॉरी टू संगत अगर मैंने कुछ अनजाने में कुछ गलत बात कह दी हो, तो जिसके मतलब कि करेगा, आई एम सॉरी टू गुरुजी एंड सॉरी टू संगत. बट गुरुजी की महिमा कोई भी बयान नहीं कर सकता. सारा दिन लगे रहो, सारी रात लगे रहो, ग्रंथों पे ग्रंथ लिख जाओ, गुरुजी की महिमा कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव हैं और गुरुजी महाशिव हैं. आई वुड लाइक टू टेक द लीव ऑफ संगत, और मैं बड़े मंदिर का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम गुरुजी के अपने एक्सपीरियंसेस संगत के साथ शेयर कर सके. कि इट्स सच अ ब्लेस्ड प्लेस, गुरुजी का बड़ा आश्रम है, सच अ ब्लेस्ड प्लेस कि मैं जिसको आई हैव गॉट सो मेनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गुरुजी ओवर देयर, कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कैसे, मतलब कि मेरे को याद है गुरुजी का मंदिर बन रहा था, नीचे गुरुजी की गाड़ी जाती होती थी. सो एक बारी गुरुजी का बर्थडे था, गुरुजी की कार आई, और उस टाइम अब तो, और उस बाद में तो ऑटोमेटिक हो गया था, बट उस टाइम हमें याद है हम थोड़े बच्चे थे, हमें किसी सेवादार ने सरिये पकड़ा. हमारा बड़ा मन था कि हमने जहाँ पे गुरुजी की गाड़ी जाती है देखनी है, तो किसी सेवादार ने हमें एंगल आयरन पकड़ा दिए कि उसका जो नीचे जहाँ पे गुरुजी की गाड़ी जाती है, तो गुरुजी की कंटेसा जाती होती है, उसको घुमाओ. तो गुरुजी कैसे कैसे छोटी बातें सुन लेते हैं. लास्ट ईयर की बात ही बताता हूँ कि जो मेरे बीच में रह गई, गुरुजी का समाधि दिवस था एंड मेरी सेवा खत्म हो गई, एंड उसके बाद गुरुजी को अंदर, गुरुजी के घर में हमने अंदर मत्था टेकना, तो बहुत संगत थी वहां पे, बहुत ज्यादा संगत थी. एंड आई यूज्ड टू एड्रेस गुरुजी इन माई माइंड एज बॉस. मैं कहता था गुरुजी जैसे देखता कहता, गुरुजी आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग टू स्मार्ट टुडे. एंड ऐसे में गुरुजी को मन में ही एड्रेस करता होता था. तो उस दिन बहुत संगत खड़ी थी, अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि करीब 400-500 बंदा खड़ा हुआ था. इतने मेरे साथ डॉक्टर पुनीत खड़े थे, इतने जो बद्दी का देखते हैं सारा, जो बद्दी में के डॉक्टर हैं और वहां पे आए थे, तो उन्होंने, इतने में एक सेवादार आता है और मैंने कहा गुरुजी क्या आज आपके दर्शन नहीं होंगे अंदर, बहुत आज दर्शन नहीं होंगे. इतने कहने की देर थी कि इतने में अंदर कोई सेवादार आता, पता नहीं कैसे ही ले जाता, जानते भी नहीं है किस तरह आके हमें लेता, जानता भी नहीं था. मैंने जैसी दरबार में मत्था टेका तो वहां पे खड़ा हुआ सेवादार मेरे को कहता है कि भाई आप सेवा करते हो. मैंने बैच नहीं डाला हुआ था. कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी भाई मैं सेवा करता हूँ. कहते हैं आप दरबार में सेवा करोगे, मेरे को बाहर बुला लिया है. तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को कहा कि कमलिया तू मत्था टेकन की गल करदा है, तेनू तो मैं दरबार से सेवा दे रहे हैं.
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ सेवा ਦਿੱਤੀ फॉर 1.5 आवर। मैं गुरु जी के घर में नीचे मैं दरबार में सेवा कर रहा था एंड वो जो फीलिंग थी आई जस्ट फेल्ट कि मैं बस गुरु जी मेरे पास खड़े हैं एंड मैं उनके पास ही खड़ा हूँ। उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता कि गुरु जी कैसे छोटी छोटी बातें सुनते हैं, कैसे कैसे करते हैं। यस, हमारी कई बार कहते हैं गुरु जी को मांगो नहीं मनो, बट यस हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मांगते हैं। मैं तो मांगता हूँ, मैं उसके लिए गुरु जी से माफी मांगता हूँ, तो पर गुरु जी कैसे कैसे सारी बातें सुनते हैं।